السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا مہمان اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا نیا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی معلومات دی جائیں اور آپ بھی ہمیں اچھے سے اچھا فیڈ بیک دیں۔ جس کو سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کریں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اچھے سے اچھا پروگرام کرنے میں کامیاب ہو سکیں آپ کے تعاون کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے حوالے سے۔ ان کے جو صدارتی ایوارڈز ہوئے ہیں ابھی 2023، اس سے جو ہم بات کریں گے۔ ان کے جو چیئرمین تھے اس فنکشن کے، نعیم اشرف صاحب، جو کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان سے بھی ایوارڈ لے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی طور امتیاز ہے کہ ترکی سے انٹرنیشنل ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور بھی ان کے بہت سے تعارف ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ ہم کوشش کریں گے ٹو دا پوائنٹ آپ سے بات کی جا سکے اور آپ سے ان کا اچھی سے اچھی ترجمانی کر سکے کہ انہوں نے ایوارڈ کس طرح کیے، چونکہ یہ سب سے بڑی بات جو تھی، یہ ایوارڈز پہلی دفعہ کیے RCSTSI نے، یعنی راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری نے۔ جو بڑی بات تھی، پہلی دفعہ کرنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے، پائنر ہونا، انیشیٹو لینا۔ السلام علیکم نعیم اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں، فرسٹ کلاس ہوں۔ پہلے تو آپ کو بڑی بڑی مبارکباد کہ آپ نے ایک بہت اچھا فنکشن ارینج کیا، وہ بھی ایوان صدر میں۔ پاکستان میں اس سے بڑا ایونٹ نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑی ایوان نہیں ہو سکتا۔ ایوان صدر ایک بہت بڑا ایوان ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ لازمات ریکارڈ ایبل ہوتی ہیں، ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک۔ نعیم اشرف صاحب، یہ بتائیں، آپ سینئر نائب صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے۔ آپ کو یہ خیال کیسے آیا یہ تقریب منعقد کرنے میں، اور آپ کے چیمبر کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح کی ایک اچھی تقریب کی جائے، جو کہ یہ میں اس لیے بات کروں کہ یہ پہلی دفعہ انعقاد ہوا ہے؟ شاہ صاحب، فرسٹ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ نے ٹائم دیا، اور تھینک یو سو مچ اگین۔ تو یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کیسے خیال آیا، جی جی، دیکھیں، جب میں پہلے دن چیمبر میں مجھے سینئر وائس پریزیڈنٹ الیکٹ کیا گیا میرے ایگزیکٹو ممبر اور باقی ممبران کی طرف سے، تو میں ایک ویژن لے کے چیمبر میں آیا ہوں۔ رائٹ۔ میں اپنے چھوٹے تاجر کو اس سطح پہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پر بڑا تاجر کھڑا ہوا ہے، ماشاء اللہ، جہاں پہ بڑا انڈسٹریلسٹ کھڑا ہوا ہے۔ بڑا ویژن دیکھیں، آپ کا۔ آپ بڑے انڈسٹریلسٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے کبھی چھوٹے پیمانے پہ کام شروع کیا، ایسے اس نے بھی کبھی، آپ بہت ساری میرے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اگر وہ جو ہے نا کپڑے کی ملیں لگی ہوئی ہیں تو اس نے کبھی سائیکل پہ کپڑا ضرور بیچا ہے۔ ایسے ہی آپ سرجیکل میں دیکھ لیں تو کچھ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے تھڑے پہ بیٹھ کے تو وہ جو ہے نا سرجیکل کا کام کیا، آج وہ فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ ایسے ہی تو میں ایک ویژن لے کے راولپنڈی چیمبر آف اسمال انڈسٹریز، راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں آیا ہوں۔ وہ ویژن یہ ہے کہ چھوٹے تاجر کو میں نے پروموٹ کرنا ہے، ہم سب نے مل کے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں جب دیکھتا تھا کہ دوسرے چیمبرز بڑے تاجر کو وہ اہمیت دیتے ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ چھوٹے تاجر کو بھی میں نے ایسے سامنے لے کر آنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی چاہیے ذرا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کا تعریف تھوڑی سی بتا دیں، تاریخ تھوڑی سی بتا دیں۔ راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں اس کو وجود میں بنے ہوئے۔ تو 9 سال کے اندر پہلے تو یہ ایک چھوٹا سے آفس میں ایک چیمبر تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ماشاءاللہ سے پیچھے 8 پریزیڈنٹس اینڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ، تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والا سال ہم نے ویسے بھی
अनाउंस किया हुआ है कि ये साल इनोवेशन का साल होगा रावलपिंडी चैम्बर के लिए, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। तो वो हम इनोवेशंस में पहले जो पहला महीना था हमारा, हम इस अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेशन पे ले आए। नेक्स्ट मंथ हमने इसको ISO सर्टिफाइड करवाया। थर्ड मंथ आपके सामने है, इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सीनियर अचीवमेंट है, अवार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। देखिए हमारे पास शाह साहब तकरीबन 900 लोगों ने अप्लाई किया था, 900 लोगों ने अप्लाई किया कि हम अवार्ड के हकदार हैं। बड़ी बात, उसमें से ये सिलेक्शन हुई, उसको क्राइटेरिया एक बना कि किसने कितनी जॉब क्रिएशन की। ये तमाम ऑल स्मॉल चैम्बर के साथ, हाँ, ये सिर्फ रावलपिंडी चैम्बर के मेंबरान या रावलपिंडी के अंदर रहने वाले लोगों का अवार्ड नहीं था शाह साहब, ये पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री है, ये उनके जो मेंबरान हैं या उनके हल्का अहबाब में जो बिजनेस ताजर आता है, ये उसका अवार्ड है। हमने तमाम चैम्बर्स को राइटिंग में भेजा कि जनाब ये क्राइटेरिया है और हमें आप बताएं कि कौन कौन आपके मेंबरान जो हैं इस अवार्ड को क्वालिफाई करते हैं। तो उन्होंने हमें जो डेटा भेजा, उसकी हमने एक टीम बनाई, एक हमारा जो एक कमेटी बनी है, उसने फिर उसमें से उसको शॉर्ट लिस्ट किया। अच्छा, वो सारे हमने शॉर्ट लिस्ट करके तो प्रेसिडेंट हाउस को भिजवाए। प्रेसिडेंट हाउस ने फिर उसमें से हमें बताया कि ये वाले सही हकदार हैं, तो इनको आपने अवार्ड, प्रेसिडेंट जो है उनके हाथ से अवार्ड होगा। बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ये भी बताएं, चूंकि आपने, मुझे इल्म है इस बात का, मैं इसका अहनी शाहिद हूँ कि आपने बड़ा काम किया चैम्बर को प्रमोट करने के लिए और बड़ी मेंबरशिप बढ़ाई। पहले कितनी मेंबरशिप थी, अब कितनी मेंबरशिप है, और ये भी बताएं कि हर नए आने वाले मेंबर को इससे क्या इस्तेफादा हासिल कर सकते हो, क्या फायदे हो सकते हैं उसको। शाह साहब, अगर हम देखें ना कि चैम्बर की जो मेंबरशिप के फायदे हैं मेंबरान के लिए, अगर मैं यहाँ बोलना शुरू कर दूं तो पूरा प्रोग्राम आपका जो है ना इसी काम में हमारे नाज़रीन को बताएं, चूंकि ये बड़ा जरूरी है कि लोग चैम्बर के मेंबर बने ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ सके। देखें, सबसे पहले जो एक आम ताजर है, एक आम दुकानदार है, एक छोटी इंडस्ट्री चलाने वाला है ना, उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होती, कि पहचान नहीं होती है। जब वो अच्छा, हमारे पास आने के लिए सबसे अहम चीज है कि वो सिर्फ टैक्स पेयर हो, अपनी हर साल वो रिटर्न जरूर FBR को जमा करवाता हो। यानी बहुत जरूरी है कि वो NTN रखता हो, तब उसको मेंबर बन सकते हैं, इसके अलावा वो मेंबर नहीं बन सकता। यस। नहीं, मशर साहब, आपसे दोबारा गुफ्तगू जारी रखेंगे, जहाँ से सिलसिला टूट रहा है वहीं से जुड़ेंगे, लेकिन अभी वक्त हो जा रहा है एक वक्फे का। नाज़रीन, कहीं मजे का, स्टे विद अस। लेक सिटी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की तरह दिल से क्रिएट किया गया। जहां रास्ता भूले बिना ही आप खो जाते हैं। Amidst luxury, एक शहर so pure, जहां की झीलों में आसमां के सभी रंग नजर आते हैं। लाइफ की मीनिंग यहां सोचे नहीं बल्कि बदल जाते हैं। लेक सिटी, set in an unparalleled location, has changed the landscape of the country's real estate. LDA's largest approved housing community, Lake City is master planned and designed by world-renowned architects. This has resulted in an unrivaled generosity of space and luxury.
यहाँ खेल खेल में सब खेल में शामिल हो जाते हैं. Everything here is just a beautiful walk away. Lake City Mall लाहौर का सबसे फाइनेस्ट एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट बन गया है. Where endless leisure, shopping, and dining, filled with life and energy, is the soul of Lake City. Lake City Golf and Country Club, where the lifestyle is created just for you. यहाँ टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिर्फ एक अमेनिटी नहीं बल्कि ट्रस्ट है. यहाँ सेहत का ख्याल रखने वाले आपका खूब ख्याल रखते हैं. स्कूल्स जहाँ फ्यूचर कस्टोडियंस बनाए जाते हैं. Far from ordinary, लेकिन लाहौर के हर कोने से too close. Reaching new heights of luxury, Lake City Roof Gardens, जहाँ balcony से हर रोज serenity greets you. Lake City commercial sectors, with their state-of-the-art facilities, have become Lahore's leading commercial districts. अब लाहौर बिजनेस करेगा यहाँ हर रोशनी का अपना रंग, अपना ढंग और अपना ही मीनिंग है. लेक सिटी में ड्रीम लाइफ बाजार की हजारों फ्रेंड्स और मैं आपको हमारी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं. लेक सिटी, अ वर्ल्ड विदिन. वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद. आज हमारे साथ मेहमान हैं नईम अशरफ साहब, मशहूर बिजनेसमैन हैं और सीनियर नायब सदर हैं RCSTSI यानी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री. और इसके साथ बहुत से अवार्ड याफ्ता हैं. इन्होंने सदर पाकिस्तान से भी अवार्ड लिया और वज़ीर पाकिस्तान से भी अवार्ड दिया. इसके साथ साथ तुर्की इंटरनेशनल अवार्ड जो इस्तांबुल में हुए वो भी इन्होंने हासिल किया. और भी इनके बहुत से तारफ़ हैं जो वक्तन वक्ता हम आपको बताते रहेंगे. और ये वक्तन वक्ता हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं. जी, मेंबर बनने के लिए एक तो टैक्स ज़रूरी है. जी, टैक्स या फाइलर होना जी इसके लिए ज़रूरी है. आपने पूछा कि फ़वाइद क्या है. देखें, जब मेंबर आ जाता है तो हम उसको बताते हैं कि किस तरह के बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए बेहतर है. क्योंकि ताजर या बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है कि कम पैसा लगा के वो ज्यादा प्रॉफिट कमाए. तो हम उसको, हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं. हमारे पैनल पे बहुत सारे हमने MOUs किए हुए ट्रेनर्स के साथ. वो आते हैं हमारे चैम्बर हाउस में आते हैं. अगर गैदरिंग ज्यादा हो तो हम डिफरेंट 5 स्टार होटल्स में, 4 स्टार होटल में वेन्यू सेलेक्ट करके तो हम वहाँ पे उनके लिए जो ओरिएंटेशन सेशंस हैं वो करवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं. उसके अंदर उनको बताया जाता है कि आने वाले 10 सालों में किस बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनको ज्यादा फायदा होगा और मुल्क की खिदमत कैसे वो कर सकते हैं. इसके साथ साथ उनको बताया जाता है, फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, उसके पास पैसे तो हैं बिजनेस करने के लिए लेकिन उसके पास एक्सपर्ट ही नहीं है. तो हमारे पैनल पे बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं. मसलन टैक्स के जो मैटर्स हैं वो हमारे पास पैनल है, वो उनकी गाइडेंस कर रहे होते हैं. फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है. तो हमारे पैनल पे कमर्शियल बैंक्स हैं, हमारे पैनल पे स्टेट बैंक की ट्रेनिंग्स हैं. उनके लोग आते हैं, हमें वो बताते हैं कि किस तरीके से आप कर्ज अप्लाई कर सकते हैं कम से कम प्रॉफिट पे या कम से कम जो इंटरेस्ट रेट है उस पे कैसे वो प्रॉफिट उस पे वो ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए. उसमें रनिंग फाइनेंस भी है, उसमें वो जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी है. इसके साथ साथ हम उनको ये भी बताते हैं कि अपनी टीम को पॉलिश कैसे करना है. उन्होंने अगर वो 10 एम्प्लॉई हैं तो उनको कैसे पॉलिश करना है. उनको बताया जाता है कि अपने ओल्ड एज, आपने सोशल सिक्योरिटी, उसके अपने लोगों का कैसे केयर करनी है. इसके साथ साथ आप हमारे पास
शाह साहब पूरी दुनिया से डेलीगेशंस आते हैं, डिफरेंट बिजनेसमैन आते हैं, हम उनके साथ B2B मीटिंग्स करवा रहे हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, हमारा जो दुकानदार है, हमारा जो ट्रेडर है, वो जब बाहर के ट्रेडर और इंडस्ट्रियल से मिलता है, एक्सचेंज करता है, तो इनकी डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ती है, इनके पास नए आइडियाज आते हैं। इसी तरह से ये डेलीगेशन हम दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं, तो जब ये बाहर जाते हैं तो वहां से सीख के आते हैं कि वो फलां इंडस्ट्री ने तो ये चीज इंप्लीमेंट की हुई थी। तो एक तो हम डेलीगेशन का, इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ एग्जीबिशंस करा रहे हैं। मसलन हमारे जो है ना 500 जो मैन्युफैक्चरर है, हम एक जगह पे एक वेन्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे पार्क चाइना में कर दिया, किसी लाहौर में आपने कन्वेंशन सेंटर में कर लिया, एक्सपो सेंटर में कर लिया, वेन्यूज हैं, तो हम वहां पे इन छोटे ताजरों की हम इनकी प्रोडक्ट को वहां डिस्प्ले करवाते हैं। अब वहां पे हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो बायर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। जब वो बायर आता है तो इनको इनके जो ऑर्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, साथ साथ हम इनकी प्रमोशन का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो अभी वेबसाइट है वो डेवलप हो रही है, उसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर ये जो ई कॉमर्स वाला जो पूरा सिस्टम है वो है कि हमारा एक मेंबर है, वो हमारी वेब के ऊपर वो अपना पोर्टफोलियो एंटर करता है। उसके वो जो बायर्स हैं, जो काम किसी जमाने में अली बाबा कर रहा था, जो काम वो दूसरे वो जो येलो पेजेस करते थे पुराने वक्तों में, अब वो हमारा वो चैम्बर कर रहा है। इसके अलावा भी शाह साहब बेशुमार, देखिए मेरा एक ताजर है, उसको कोई मसला है, गवर्नमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग का इशू चल रहा है, कोई बोर्ड टैक्स का इशू चल रहा है, तो वो उनकी चीजों को हम गवर्नमेंट लेवल पे, देखिए शाह साहब एक ताजर है ना, वो उसकी वो अप्रोच नहीं है, वो डायरेक्टली कमिश्नर से नहीं मिल सकता, वो घर से उठा दुकान पे, दुकान से उठा घर पे, हाँ जी, उसकी वो अप्रोच नहीं है। हम एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एज अ ब्रिज काम कर रहा है, किसके दरमियान, अपने ट्रेडर्स ताजर के दरमियान और मुल्क की जो करता धरता है, जो निजाम को चला रहे हैं, उनके दरमियान हम एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। जब हम एज अ ब्रिज काम करते हैं, मतलब पिछले दिनों देखें वो कमर्शियल गैस का रेस्टोरेंट का इशू था, तो हमने उसको हाईलाइट किया, हमने गवर्नर से मीटिंग की, हमने उनके मिनिस्टर से मीटिंग की, तो हमने कोशिश की कि दोनों के लिए विन विन हो। अच्छा, हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ ताजर की हक में बात करते रहें, हम हमेशा हमने बैलेंस करके चीजों को रखा। अगर हमारा ताजर जो है वो गवर्नमेंट की चीजों को नहीं मान रहा, मसलन हम अपने ताजर को कहते हैं कि जब शाम को वो सफाई करे ना, तो बाहर रोड के ऊपर वो कूड़ा क्रिकेट ना फेंके जाए, हम उसको कहते हैं कि बिन रखे, शॉपर रखे, उसके अंदर बांध के वो जो है वो कूड़ा क्रिकेट रखे, ताकि हमारा मुल्क जो है वो साफ सुथरा हो। और जब हमारा मुल्क साफ सुथरा होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा मुल्क कहलाएगा ना। नईम साहब, जहां पे आपने इतनी बातें बताई, बड़ी अच्छी तफसील से आप बताई हैं, आप ये भी बता दें कि आपका चैम्बर का ऑफिस कहाँ पे है, किसी मेंबर को वहाँ पे मेंबर बनने के लिए जाना हो आपके पास बिजनेसमैन को, तो उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर क्या है? शाह साहब, अभी तो बड़ा आसान हो गया कि अगर आपने मेंबर बनना है या किसी ने भी मेंबर बनना है, जस्ट हैव अ वन फोन कॉल। हमारे जो चैम्बर के जो नंबर्स हैं वो वेबसाइट पे मौजूद हैं, जस्ट वो ब्राउज करके उस पर कॉल करेगा, तो ऑनलाइन फॉर्म है, वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको फिल करेगा। फिल करने के बाद ऑनलाइन फीस भी जमा करवा सकता है, तो उसको चैम्बर फ्रिक्वेंटली आने की भी जरूरत नहीं है। इससे पता होना चाहिए कि कहाँ पे चैम्बर। चैम्बर हमारा जो है लियाकत बाग के पास मरी रोड पे है, ऑपोजिट गॉर्डन कॉलेज, एंड हमारा टाइम जो है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक है। अच्छा, हमारे चैम्बर में एक और भी बड़ी मजे की बात है शाह साहब, मैं आपको बताऊं, हमारे चैम्बर में ये भी बता दें कि लेके वो क्या क्या है, तस्वीर, ID कार्ड, NTN नंबर। जी, मैं आपको बता देता हूँ शाह साहब, एक बहुत जबरदस्त बात है हमारे चैम्बर की कि हमारे चैम्बर में आने के लिए आपको किसी से भी टाइम नहीं लेना पड़ता। डोर खुलता है तो प्रेसिडेंट भी उठ के मिलता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी उठ के मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट भी उठ के मिलता है। स्टाफ हमारा जो सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उसका तो काम ही यही है कि अपने मेम्बरान की जो है खिदमत है उस पर करनी है। ये वह चैम्बर है शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि इस यहाँ पे किसी भी ऑफिशियल से मिलने के लिए आपको कोई टाइम नहीं लेना पड़ता। एनी टाइम 9 to 5 आप चैम्बर में तशरीफ ला सकते हैं और हम आपको वेलकम करेंगे। बहुत अच्छी बात की, जैसे आपने वेलकम कहा कि तमाम मेंबर, उनके लिए दरवाजा खोलना है, बस आगे आपके पास हर चीज़ मौजूद है, प्रेसिडेंट मौजूद है, सीनियर नायब सदर नईम अशरफ साहब मौजूद हैं और नायब सदर भी मौजूद है। और इस तरह पूरी मशीनरी आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर है। कदम आपने उठाना है, काम इन्होंने करना है, वेलकम आपको इन्होंने करना है। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है नईम अशरफ साहब से, जो कि सीनियर नायब सदर हैं RCST-SI के। अभी वक्त होया जा रहा है एक वक्फे का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर। कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी! 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स, सिर्फ
₹350 में। अभी *7777# डायल करो तो बड़ी ऑफर्स के लिए सिर्फ यूफोन 4G, पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन 4G, तुम ही तो हो। डिजिटल होना है तो Zong 4G की बेस्ट ऑफर लगाएं। Monthly Pro Plus अब biggest discount के साथ डायल *7088#, 60 GB डेटा, 10,000 Zong minutes और SMS, 600 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, ₹1249 के लोड में। Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदेद। आज बड़ा अच्छा मौजू था रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री का। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने तारफ़ कराया नईम अशरफ साहब ने, जो कि सीनियर नायब सदर हैं और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी थे, जिन्होंने अवार्ड दिए, उस कमेटी के चेयरमैन थे। मैं इनसे पूछता हूँ कि अवार्ड्स के इनकाद के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? शाह साहब, पहले तो ये टारगेट था कि ये अवार्ड करना है, हमने प्रेसिडेंट हाउस से पहले परमिशन लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया, हमें प्रेसिडेंट साहब ने परमिशन दे दी, अपनी अवेलेबिलिटी दे दी। अब उसके बाद हमने मेरिट के ऊपर ये सारी जो सिलेक्शन थी अवार्डीज की, हमें वो करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड चैलेंज भी हमारा हुआ। फिर आपको पता है अवार्ड करना कोई इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए स्पॉन्सर्स हमें ढूंढना एक और बड़ा चैलेंज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता था कि ये इतना बड़ा अवार्ड होने जा रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके जितने एक्सपेंसेस थे वो हमें बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्सर्स मिल गए और हमने कर लिया। चैलेंजेस देखें, चैलेंजेस तो हर जगह पे होते हैं, हर काम के लिए होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि चैलेंज को एंजॉय करके और आप उसको ओवरकम करें। तो मेरी पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे ग्रुप लीडर ने, मेरे चेयरमैन नदीम शेख ने, मेरे प्रेसिडेंट ने, मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने, मैं कहता हूँ मेरी पूरी टीम ने ऐसा ज़बरदस्त सपोर्ट किया इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सरपरस्ती बड़ी ज़रूरी होती है और हौसला अफजाई भी बड़ी ज़रूरी होती है, जो कि आपके बड़ों ने की, आपके चेयरमैन ने की, आपके सरपरस्त आला ने की। लेकिन ये बताएं, जो बातें आपने सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब से की आपने इस्तकबालिया के दौरान, कैसा रिस्पांस था और आपने क्या मतालबात उनके आगे रखे थे कि क्या डिग्निटी, क्या ऑनरशिप मिले बिजनेसमैन को? शाह साहब, आप क्योंकि उस प्रोग्राम में इनवाइटेड थे, आप सामने बैठे हुए थे, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने सिर्फ अपने 2 मतालबात रखे। मैं कहता हूं कि मेरा जो ताजर है, जो SMEs है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ताजर है, उसको वो रिस्पेक्ट मिले जो एक मिनिस्टर की रिस्पेक्ट है, उसको वो रिस्पेक्ट मिले जो एक सेनेटर की है। वो रिस्पेक्ट क्या है? जब वो किसी एयरपोर्ट पे जाए और वो दिखाए कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं SMEs हूँ, तो उसको वो प्रोटोकॉल मिले जो एक सेनेटर को। वो हॉस्पिटल में जाए, उसको उसी तरह से डॉक्टर ट्रीट करें जिस तरह से एक सेनेटर, एक मिनिस्टर और एक गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल को किया जाता है। मेरा एक तो मुतालबा ये था। दूसरा, चूंकि मैं वरिड हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ, इतना ज़्यादा वरिड हूँ कि 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। आप देखें, मेरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट थी, मैं पूरे पाकिस्तान के जो करने वाले हैं, जो मैनेज करने वाले हैं, मेरी उन सारों से रिक्वेस्ट है, प्रेसिडेंट साहब से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की। बड़ी पुरजोर आपने की। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। आप देखें, ये बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या बनेंगे? ना तो इन्हें पढ़ना आता होगा, ना लिखना आता होगा, यही लोग चोरियां करेंगे, यही लोग डाके डालेंगे, हम इनको क्या बनाएंगे? तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम स्कूल में जो लोग हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो काम कर रहे हैं, चलें वो जैसे तैसे भी है, वो यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वो कॉलेज में चले जाएंगे, वो दुकान खोल लेंगे, इंडस्ट्रियां लगा लेंगे, लेकिन ये आउट ऑफ स्कूल बच्चा हमारे पाकिस्तान के लिए एक सरदर्द बनेगा, इस पे काम करें। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ने एक्नॉलेज किया कि यस, वो चाहते हैं कि आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स पे वो काम करें, और वो ऑलरेडी भी कुछ उन्होंने बताया कि इस पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। ये जो हमारे दोनों मुतालबात थे, दोनों रिक्वेस्ट थी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस पे काम भी होता नजर आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कि उन्होंने आपको डायरेक्ट एड्रेस किया इस हवाले से, जो आपने नुकात उठाए थे। लेकिन ये भी तो बताएं कि इतनी बड़ी तकरीब का आपने इनाकात किया, आपके चैम्बर ने आपको फुल सपोर्ट किया, आपके बड़ों ने फुल सपोर्ट किया। ईवान सदर के किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? उनके भी कुछ नाम लेना पसंद करेंगे जिन्होंने आपको उसमें फुली सपोर्ट किया। शाह साहब, देखें, जब बंदा जिसकी नीयत सही हो,
وہ گھر سے نکل آئے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور ملک کو قوم کے لیے کام کرنا ایسے ہے, ہی. اپنے تاجر کے لیے کام کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی, مخالفتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن آپ کے لیے زیادہ بڑی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر تمام مینجمنٹ نے اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں نے اتنا زبردست کوآپریٹ کیا. شاہ صاحب میرے لیے بڑا امیزنگ تھا. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے رکاوٹیں ملیں گی, کوئی کہے گا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, یہ پیپر ورک کمپلیٹ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے جو ہوم ورک کیا انہوں نے اتنا زبردست اپریشیٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں, جب میں پریزیڈنٹ ہاؤس سے باہر نکل رہا تھا تو ان کے کافی سارے آفیشل اس ٹائم بھی کھڑے ہوئے تھے, تو وہ مجھے مبارکباد دے رہے تھے. مجھے کہتے ہیں نعیم صاحب زبردست پروگرام, مزہ آ گیا. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کا پروگرام ہے, یہ ایسے ہی ہوگا. تو مجھے وہ مبارکبادیں دے رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس کے تمام ٹاپ آفیشل نیچے تک سب نے کوآپریٹ کیا. ماشاءاللہ. اب یہ بھی بتائیں کہ آئندہ آپ کے کیا لاہ عمل ہے اور آئندہ پائپ لائن کے اندر آپ کے کون سے پروگرام ہیں جس میں لوگ آپ کے ساتھ تعاون کریں؟ شاہ صاحب میں اپنے سارا جو ویژن ہے ابھی آپ کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرتا. جی میں چاہتا ہوں کہ جب ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کام کر رہے ہیں. میرا ایک ہی ویژن ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. میرا ویژن ہے کہ جو تاجر ہے, جو ٹیکس دیتا ہے, اس کو فیسیلیٹیشنز ملنی چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اکنالج کیا کہ اگر کسی ملک نے ترقی کی تو اس کے ایس ایم ای سیکٹر جو سب سے بڑا سیکٹر ہے, کچھ ملکوں میں تو 70-80% تک ایس ایم ایز ہیں, ان کی وجہ سے آج وہ ملک ترقی کر رہے ہیں. تو میرا یہ ایک مشن ہے, میرا یہ ویژن ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, چھوٹے تاجر پہ کام کرنا ہے تاکہ ملک کا ریونیو بڑھے. ملک کا جو آج ہم ڈالر کر رہے ہیں نا, وہ ڈالر ہمارے پاس خود ہو, وہ یہاں سے جب ایکسپورٹ کریں, چھوٹے لیول سے ایکسپورٹ کریں. آپ کے پاس زندہ مثال ہے اس میں شاہ صاحب, سیالکوٹ کو دیکھ لیں آپ. سیالکوٹ میں اگر کوئی وہ جو چھوٹا تاجر تھا نا, جو وہ چھریاں کانٹے بناتا تھا, آج اس کی بھی دو جو ہے انڈسٹری لگی ہوئی ہے, وہ آج وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. سیالکوٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے, وہ دیکھیں آج جو ہے شاہ صاحب وہ انہوں نے ایئرپورٹ اپنا بنا لیا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ اور ایس ایم ای سیکٹر پہ زبردست کر کے کام کریں, اپنے تاجر کو فیسیلیٹیٹ کریں تو ملک ترقی کرے گا. نہیں مشرف صاحب یہ بھی بتائیے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے آپ کے جذبات کا جیسا خیال رکھا, ان کا بزنس مین کے حوالے سے کیا اپنا تخیل ہے, کیا بزنس مین کو کیسے پروموٹ ہونا چاہیے؟ اور آخر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کو کیسے پریز کیا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے استقبالیہ خطبے میں انہوں نے آپ کو ایڈریس کیا, تو کیسا فیل کیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے, وہ کوئی جاگیردار نہیں ہے, وہ ایک عام انسان تھے. آج ماشاءاللہ سے پریزیڈنٹ ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ایس ایم ای سیکٹر کو, انڈسٹری کو, ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے اور ایجوکیشن سیکٹر کو. تو مجھے لگا کہ انہوں نے واقعی اس کو اکنالج کیا اور اپریشیٹ کیا. اس ایوارڈ سیریمنی کو, اس سیونیئر ڈسٹریبیوشن سیریمنی کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے میرے ہاتھ مضبوط کیے اور اس ایونٹ کو سکسیسفل کیا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آپ کے دل کی بات کی اور آپ نے ان کے دل جیت لیے. بڑی اچھی بات. ہمارے ساتھ میں گفتگو تھے نعیم اشر صاحب, جو کہ سینئر نائب صدر راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے تھے. بڑی اچھی گفتگو کی, بڑے اچھے طریقے سے ہر پہ رائے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے ان کو بلائیں گے اپنے پروگرام کے اندر تاکہ اچھی سے اچھی گفتگو, اور بالخصوص جیسے انہوں نے خود کہا کہ تاجروں کو میرا دل ہے کہ تاجر مزید پروموٹ ہوں. جس کے آج ایک دکان ہے اس کی 2 دکانیں بنے, جس کی آج انڈسٹری ہے وہ اس کی اور انڈسٹری بنے. جیسے کہ انہوں نے سیالکوٹ کی مثال دی کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے, خود ساری پہ یقین رکھتے ہیں. ایسی ان کا جو راولپنڈی کا تاجر ہے اس کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک عزت ہو, وقار ہو اور عظمت ہو اس کام کی جو وہ کر ہو. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید آصف اجازت دیجیے گا. آئندہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.